स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, विच इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. अगर आपसे कोई पूछे कि एक टर्म ऐसा क्या है जो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो, द क्वेश्चंस आर, दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 315 in your textbook. What is the single term that answer all the following question? First one is, what decides whether you are blue-eyed or you are brown-eyed? Why does wheat grain will germinate to produce wheat plant only and not the rice plant? Which acid molecules are present in the nuclei of living cells? तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, न्यूक्लिक एसिड्स. This is one of the most remarkable property of the living cells, that they contain this DNA, because of which they can form the replica through thousands of generations. We are having similarities with our parents because of DNA. तो इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि DNA जो है, न्यूक्लिक एसिड्स आर broadly of two types, DNA and RNA. The DNA is responsible for storing the genetic information and transferring the hereditary characteristics from parents to offsprings. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करता है और जो पेरेंट्स में प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है, वो है डीएनए. And RNA, you must be knowing, is involved in the very important process inside our body, and that is protein synthesis. Synthesis of protein in the body cells takes place with the help of RNA. So both DNA and RNA are equally important, and we will study them almost together because they have many similarities in their structural formula. DNA full form तो आपको मालूम ही होगा, deoxyribonucleic acid, and RNA stands for ribonucleic acids. RNA are found mainly in the fluid of the living cells, that is cytoplasm, and DNA are found in the nuclei of the living cells. Okay. Now this DNA or RNA, whatever I say, in one word they will be nucleic acid. They are actually the polymers. Nucleic acids are polymers of the repeating units, that is the monomers known as nucleotides, meaning many nucleotides will combine together to make a structure of nucleic acid. So nucleic acids are nothing but the polynucleotide which is made up of nucleic acid, न्यूक्लियोटाइड्स. अब कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? डीएनए में देर आर मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए में कम होते हैं, दे कैन कंटेन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. बट याद रखना है, डीएनए हो या आरएनए, दे आर मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स. सो द न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? टाइड मतलब तीन. न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ थ्री component. One is sugar, then we have a base, and then we have a phosphate group. Nucleotide is made up of three components: sugar, base and phosphate. The sugar which is present is ए मोनोसैकेराइड नोन एज राइबोस, जिसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. मार्जिनल डिफरेंस होगा डीएनए और आरएनए के शुगर यूनिट्स में. देन वी विल बी हैविंग इन दिस द बेसिस विच आर जनरली कंटेनिंग नाइट्रोजन. सो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस. एंड फॉस्फेट का तो हमें स्ट्रक्चर मालूम ही है. ठीक है. अब शुगर, बेस और फॉस्फेट तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड. इसमें से अगर मैं फॉस्फेट को निकाल दूं, एंड इफ आई कंसिडर ओनली फर्स्ट टू, शुगर एंड बेस, देन दिस टू आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियोसाइड. मतलब न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट इफ आई कंबाइन, आई विल गेट ए न्यूक्लियोटाइड. So first we will talk about the sugar, which is the first component. Sugar या मोनोसैकेराइड जो आरएनए में और डीएनए में प्रेजेंट है, वी विल सी देयर स्ट्रक्चर. सो
we are studying what now? Which sugar units? Obviously, we have already mentioned it is a monosaccharide of ribose. So the sugar component present in the DNA and RNA, let us see. In RNA, the sugar which is present is D-ribose. ओके और आरएनए में मैंने आपको बता दिया, डीएनए में जो शुगर यूनिट प्रेजेंट है उसका नाम है 2-डीऑक्सी डी राइबोस. ठीक है, तो एक प्रीफिक्स जुड़ गया 2-डीऑक्सी, राइट. ये जो डीऑक्सी है, दिस इज ओनली दिस डी. तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में होता है डी राइबोस, एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो है 2-डीऑक्सी डी राइबोस. दोनों भी शुगर का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. वी विल बी सीइंग द हेवॉल्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला. राइबोस इज ए पेंटोस विच इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूरान रिंग, जिसमें 4 कार्बन तो रिंग के अंदर होता है और 1 बाहर होगा. द CH2OH, द 5th one is outside. Okay, and rest of the groups in D-ribose are placed in this way. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? डी राइबोस का, द शुगर विच इज प्रेजेंट इन आरएनए. ठीक है, अब डीएनए में जो शुगर है ना, उसका नाम क्या है? 2-डीऑक्सी डी राइबोस. सेम लिखना है आपको, सिर्फ सेकेंड पोजीशन पे जो ये ऑक्सीजन है ये निकाल देना है, right? That is called the sugar of the DNA. It is 2-deoxy, means at the second position the oxygen is not present. That's why the prefix 2-deoxy before the name of the sugar. तो देखो अभी DNA का sugar unit कैसे बनाएंगे हम? This is the first carbon at which, as it is, the groups will be written. This is the second carbon जहाँ पे हम H लिखेंगे और इंस्टेड ऑफ OH हियर, यहाँ पे OH था, अब मैं OH नहीं लिखूंगी, ओनली H. रेस्ट ऑफ द थिंग्स मीन्स द ग्रुप्स विल बी एज इट इज. ओके, सो दिस इज व्हाट 2-deoxy D-ribose, the sugar unit which is present in DNA. So these are the sugar components, and I hope you have noted the marginal difference at the second carbon atom in the sugar units of RNA and DNA. नाउ ये तो बात हुई शुगर यूनिट की. अब दूसरा कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है वो क्या था? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस. ठीक है, देयर आर टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए. ये 5 बेसिस में से 3 बेसिस में एक ही रिंग होता है, और ये 3 बेसिस कौन से हैं? साइटोसाइन, यूरासिल एंड थायामीन. They are monocyclic and their parent is very similar to pyridine ring, pyrimidine ring. Okay, ये जो 3 मैंने बताया आपको, साइटोसाइन, यूरासिल और थायामीन, दे आर मोनोसाइक्लिक, और इनका पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर आज हम देख लेते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होगा वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. वेरी सिमिलर टू बेंजीन रिंग, सिर्फ 2 नाइट्रोजन आपको डालना है इंस्टेड ऑफ द 2 कार्बन्स. तो जैसे बेंजीन में 6 कार्बन होता है, यहाँ पे 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है. दिस इज व्हाट? pyrimidine, which will be the parent compound in these 3 bases. कौन से हैं ये बेसिस? साइटोसाइन, यूरासिल एंड थायामीन. ठीक है, अब 5 में से 3 तो हमने बता दिए, बचे हुए 2 जो है ना, वो है एडिनाइन एंड ग्यूनाइन. नाउ दे आर बाइसाइक्लिक एंड देयर पेरेंट कंपाउंड इज नोन एज प्यूरिन. हाउ टू ड्रॉ प्यूरिन? आपको यही वाला स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले बना देना है. एज इट इज मैंने बना दिया, आप देख सकते हो, राइट. अब क्या करना है आपको? एक पेंटागॉन फिर से बनाया हमने. ठीक है, NH and here double bond. Keep in mind, carbon will be always tetravalent and nitrogen will be always trivalent. This is purine ring and this is the parent compound in adenine and guanine.
ये स्ट्रक्चर में कुछ और सब्स्टिट्यूशन या ब्रांचेस आएगा, थोड़े से छोटे से मॉडिफिकेशंस आएंगे जब एडिनाइन और ग्यूनाइन के स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो 5 बेसेस है ऑल कंटेनिंग नाइट्रोजन, 3 उसमें से pyrimidine बेसेस होते हैं, और जो एडिनाइन और ग्यूनाइन है दे आर कॉल्ड प्यूरीन बेसेस। We will talk about structures of these 5 nitrogen containing bases in our next video. Bye bye, take care.